अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना बलूचनी की हदूद में 2009 में एक कत्ल होता है। मुलजिम फरार हो जाता है। 2-4 नहीं बल्कि 16 साल के बाद वही मुलजिम पुलिस की हिरासत में आ जाता है। कौन था यह मुलजिम, किसे कत्ल किया गया और पुलिस ने कैसे हिरासत में लिया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम। नाज़रीन इकराम, थाना बलोचनी पुलिस जो है एक ऐसे इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ़्तार करती है जो 16 साल से पुलिस को मतलूब था। 2009 में मर्डर करके फ़रार होने वाला ये मुलजिम आखिरकार पुलिस की हिरासत में है। क्या हुआ था 2009 में, किसको इसने मर्डर किया था? मेरे साथ उस मुकदमे के मुद्दई मुकदमा भी मौजूद हैं, शहज़ादा गुलरेज़ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किसको मर्डर किया इस मुलजिम ने, कहाँ फ़रार हो गया था ये। पुलिस जो है वो 16 साल तक जिस शख्स को ढूंढती रही उसके ज़िम्मे किसके और किस शख्स को कत्ल किया उसने, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये जो इश्तिहारी मुलजिम पुलिस ने गिरफ़्तार किया है ये कौन है, किसको इसने मर्डर किया था? आप उस मुकदमे के मुद्दई हैं, क्या हुआ था 2009 में? छोटा भाई है जी ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਈ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ? ਵੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ? ਛੋਟੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। 2 ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ। ਬੇਟੇ ਦੋਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਆ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ? ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਕਈ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਸਟ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੇ? ਭਾਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ? 3 ਮਾਰੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ 2009 ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਉਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ? ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 13 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ 9 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ। नाज़रीन इकराम, बहुत मुश्किल होता है जब आप बड़े हों, आपके छोटे भाई जो हैं उनको बग़ैर किसी वजह के इनोसेंस में ज़रा सी तल्ख़ कलामी पे जो है वो कत्ल कर दिया जाए। फिर एक तरफ आप अदालत, थाना कचहरी और दूसरी तरफ उस भाई की फ़ैमिली को देखना एक बहुत टफ़ जॉब है। कैसे इन्होंने जो है वो ब्रॉट अप किए होंगे 2 भाई, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चों को जो अब जवान हो चुके हैं, जो अपना मुस्तकबिल जो है वो उसको बनाने के बिल्कुल जो है वो बल्कि आगाज़ कर चुके हैं। कुछ जो है वो भी स्टूडेंट्स हैं। मैट्रिक के एक छोटे भाई का जो है जिसका बाद में मर्डर हुआ, उनका बेटा
अभी मैट्रिक के उसने एग्ज़ाम दिए हैं। एक जो 2009 में मर्डर होने वाला भाई था, उनका एक बेटा जो है वो शायद ओवरसीज़ है, बाहर है, दूसरा जो है वो ज़िम्मेदारा करता है अपने चचा के साथ। तुसी खुद भी ज़िम्मेदारा ही करते हो? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਬੇਟੇ ਪਾਲਣੇ ਪਏ। इंशाल्लाह जी पाले है जी अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। नाजरीन 2009 में एक भाई खोया और फिर 2013 में ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2009 ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇ ਸੀ। ਮੁਰੱਬੇ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ? हाँ जी ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? नहीं कोई नहीं सी नाल ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਰਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਰਕਬਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮ? ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਲਈਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਈਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਫ ਐਂਡ ਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਲਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਰਗੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन किराम, सब्र और कानून पे भरोसा ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं जाने देता। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने भतीजे, जाहिर है जिनके सर पे वालिद का साया नहीं था, जवान खून है, कभी कभी जोश ज़रूर मारता होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि इन्होंने हमेशा अपने भतीजों को भी यही तलकीन की कि कानून पे भरोसा रखें, हमें अपने कानून पे, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पे एतमाद है। और उस सब्र का सिला ये है कि चाहे जितना मर्ज़ी प्रोलॉन्ग कर जाए, कोई इश्तिहारी मुलजिम जितना मर्ज़ी छुप जाए, पुलिस अगर अपना काम कर रही हो तो फिर जस्ट एक मौका चाहिए होता है, जिसे थाना बलूचनी पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से कैच किया। और वो मुलजिम जो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका था, मौका मिलते ही पलक झपकते में वो पुलिस की हिरासत में है। ये इनका कानून पे और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे ट्रस्ट था, जिसका सिला अल्लाह ताला ने दिया, और वो मुलजिम जो है पाबंद सलासिल है और उसे करार वाकई सज़ा भी मिलेगी। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे का वो नासूर है जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। दुश्मनियाँ नस्लों तक चलती हैं, ख़ानदान के ख़ानदान मिट जाते हैं। ज़रा सी बात, ज़रा सी तल्ख़ कलामी, एक मामूली अदम बर्दाश्त जो है वो उसका खुमियाजा कितना भुगतना पड़ता है, ये हम आए रोज़ रिपोर्ट करते हैं। थाना बलूचनी में भी 2009 में कत्ल का एक वाक़या पेश आता है, जिसके बाद पे दर पे कत्ल होते हैं। एक ज़रा सी अदम बर्दाश्त, और वो 2009 में कत्ल करके फ़रार होने वाला मुलजिम जो है, थाना बलूचनी पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती, और फिर आखिर 16 साल के बाद उसे धर दबोचा जाता है। मैं थाना बलूचनी में मौजूद हूँ, सब इंस्पेक्टर एजाज़ दाढ़ हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना बलूचनी के। एजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये 2009 में एक शख्स फ़रार होता है और 2025 में आके आखिरकार आप उसे पकड़ लेते हैं। कौन है ये शख्स? 302 का इश्तिहारी था, किसको इसने मारा? बैकग्राउंड ज़रा बताइएगा, और फिर अगले हिस्से पे हम आते हैं कि इसको पकड़ा कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि जो आजकल माशरे में जो अदम बर्दाश्त है ना, उसके बारे में आप जितना तसव्वुर करें उससे ज़्यादा अदम बर्दाश्त है। अब ये एक मामूली सी गांव में छोटी मोटी देहाती लेवल पे छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं, तो इनके ना आपस में मामूली इनके अच्छे तल्लुकात भी थे एक दूसरे के साथ, मतलब वो देहात में तल्लुकात भी होते हैं। तो हमें मामूली बात पे इन्होंने जो है ना, एक ऐसा जवान आदमी जिसके 2 बच्चे भी थे, और मामूली बात पे वो अपने खेतों में हल चला रहा है। एक होता है कि लड़ाई के लिए कसदन आ जाना, लड़ाई हो जाना, कुछ इस तरह के मामला, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अपने खेतों में हल चला रहा है, और वो बंदे आए और उन्होंने वो जैसे वो ट्रैक्टर से उतरा है तो बंदे आ गए, उन्होंने आके हमलावर होकर तो उस बंदे को उधर जो है फायरिंग करके कत्ल कर। ये मुलजिम जो है इस वारदात के फौरी बाद ये फ़रार हो गया, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक इसी ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं, इसी ख़ानदान का दोबारा भी इन्होंने नुकसान किया। वो क्या स्टोरी है, वो बताइए। बस फिर लोग जो है ना अपने दिल में अना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, और देहात में फिर थोड़ा बदतरी का अंसर भी पाया जाता है। तो उसके बाद जो है इस वक़ूए के बाद
एक औरत कत्ल होती है, उनका इल्ज़ाम जावेज़ फरीक पे आ जाता है कि जिन्होंने कत्ल किया है, मतलब उसमें वो इस्तिगासे में चले गए। दूसरा, यही जो उस वक्त मुद्दई थे ये दोबारा अदालत में उस इस्तिगासे के सिलसिले में पेश होने के लिए जा रहे थे, तो 3 लोगों का दोबारा मर्डर कर दिया गया। ये जिसे हम इंग्लिश में एम्बुश और पंजाबी में कहते हैं थड़ा मारना, ये भी हमारे गांव में बहुत कल्चर है कि एक शख्स जो तारीख पे जा रहा है या असूल इंसाफ के लिए जा रहा है, उसको रास्ते में किसी सुनसान जगह के ऊपर जो सेलेक्ट करते हैं जगह, और फिर वो उसको बाकायदा एम्बुश, नाज़रीन कराम जिसे हम कहते हैं कि थड़ा पंजाबी में से कहते हैं थड़ा मारना, कि आप वेट करते हैं, घात लगाते हैं, और जब आपका मतलूबा शख्स आता है तो आप उसे संभलने का मौका नहीं देते। इजाज़ भाई, उस वाक़े में जो है वो कितने लोग मारे गए? उस वाक़े में भी 3 लोग जो है ना, वो उनकी 3 जानें, बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। बल्कि इस जो पहले इस वकूए में जो कत्ल हुआ था उसका भी दूसरा भाई दोबारा फिर उस वकूए में शहीद हो गया। अब एक ज़रा सी बात पे शुरू होने वाली दुश्मनी जो है वो 4-5 इंसानी जानें निकल जाती है। ये शख्स जो अभी आपने अरेस्ट किया है, ये कौन है? ये उसी पहले वाले वाक़े का मरकज़ी मुलज़िम था, तो ये कहाँ चला गया था? ये पहले वाक़े का मरकज़ी मुलज़िम है और ये इलीगल तरीके से फिर दुबई में चला गया। पुलिस ने फिर, ज़ाहिर है आपको पता है पुलिस के भी अपने सोर्स है, और पुलिस जो है ना वो भूलती नहीं है किसी जुर्म को, ना ही हमारे अफसरान बाला भी हमें भूलने देते हैं। मतलब हमारी मीटिंग में भी ख़ास तौर पर जो हमारे भी CPO साहब हैं, जो RPO साहब हैं, ये इश्तिहारियों के बारे में और पुरानी दुश्मनी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस हैं। तो इसके बारे में हमें बाकायदा जो है ना पुश किया जाता है, बाकायदा गाइड किया जाता है, और हमें हर तरह की जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड की जाती है। तो उस सिलसिले में फिर अल्लाह पाक ने करम किया, महकमाना कोशिश से जो है आपने और आपकी टीम ने बाकायदा सरप्राइज़ दिया है उसे, क्योंकि मुलजिम जो है वो यही सोच रहा होगा ना कि 16 साल गुजर गए, अब किसको याद होगा, भूल भाल गई होगी, मेरी फ़ाइल जो है उसके ऊपर मनो मिट्टी पड़ गई होगी। आपको पता कैसे चला कि ये शख्स जो है वो बैरून मुल्क फ़रार होने वाला अभी हमारी रेंज में है, और दबोचा कैसे, ज़रा वो वाक़या बताइए। बस ये फिर थोड़ी सी कुछ महकमाना सेक्रेसी भी होती है, तो उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन जिनका मरा होता है ना उनको भी याद होता है। और पुलिस के पास भी जो है ना ऐसा नहीं होता, जब तक कोई मुलज़िम कानून के कटहरे में नहीं चला जाता तब तक हमारे पास उसका बाकायदा वो हमें ब्लैंक करता रहता है, हमें उसके बारे में पूछा जाता रहता है। अब 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, जितना भी अरसा हो जाए, तो जब तक उसके बारे में कोई कानूनी जो है वो शक्ल अख्तियार नहीं कर जाता वो केस, तब तक वो हमारे सामने ही रहता है। ये इसको हम टेक्निकल टर्म में जो है वो फील्डिंग सेट करना भी कहते हैं, कि आपने बाकायदा फील्डिंग सेट की हुई होती है, जैसे ही वो रेंज में बंदा आता है तो दबोच लिया जाता है। इसी जो मुलजिम है, इसके जो दूसरे केस में 3 कत्लों वाले में भी कुछ लोग तो जुडिशियल हो गए, सज़ा भी होगी, बल्कि एक को सज़ाए मौत है हमारे ज़राए के मुताबिक, 2 जो हैं वो 25-25 साल कैद उनको बोल दी गई है, कुछ अभी भी मफरूर हैं, उनके लिए भी जो है वो फील्डिंग सेट कर रखी है पुलिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पुराने मुजरमान इश्तिहारी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना, CPO साहब, RPO साहब, वो पुराने इश्तिहारियों के बारे में बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हैं, और हम अब आजकल काम ही उन पर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ना जल्द से जल्द आपको उनके बारे में भी अच्छी खबर देंगे। इजाज़ भाई, जो गांव देहात का कल्चर है, इसमें पहले बहुत ज़्यादा लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होती थी। हम खुद विटनेस हैं कि गांव में किसी एक बेटे या बेटी की शादी होती थी या एक कोई मर्ग हो जाती थी, यानी खुशी और गम में पूरा गांव शामिल होता था। ये शहरों वाली अफरा तफरी गांव देहात में बहुत कम हुआ करती थी, सो झगड़े भी कम हुआ करते थे। अगर किसी एक गांव में झगड़ा होता था तो उस कंसर्निंग पूरे थाने में, पूरे देहात जो है अहले दे, उनमें खौफ फैलता था कि यार फ़लाँ गांव में जो है वो लड़ाई होगी, बड़ा जुल्म हुआ है। अब आप क्योंकि ज़्यादा रूरल एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या समझते हैं आपकी कितनी रेशो बढ़ गई है? ये गांव देहात में ज़रा सी बात कीजिए, दीवार टेढ़ी कर दी, वो मेरी तरफ 2 ईंटें गिर गई, मेरे खाले से पानी लगा दिया, वो इवन घरों की आपस की, भाई बहन के साथ, वालिदैन के साथ औलाद नाफरमान होती जा रही है। ये केसेस जो हैं इनकी बेसिकली वजह क्या है? क्या हम जहालत कह सकते हैं, या फिर अभी सोशल मीडिया ने अवेयरनेस तो इतनी दे दी है कि हर हाथ में मोबाइल है, आपकी दस्तरस में है सारी तालीम, उसके बावजूद ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? बस मैं तो समझता हूँ कि लोगों में ना अदम बर्दाश्त है, और जो है ना अदम बर्दाश्त के अलावा जो मजहबी मामलात हैं ना लोगों का, अल्लाह के साथ अपना अक़ीदा ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। और इजाज़ भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा इस तरीके से कि जब अल्लाह ताला से हम दूर होना शुरू होते हैं तो फिर अल्लाह हमें
दुनिया से भी दूर करना शुरू कर देता है। जब हम एक वक्त हुआ करता था, हम जब देखते थे कि इमाम मस्जिद जो है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, अब हम इमाम मस्जिद को अपना ज़र ख़रीद समझते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं बाकायदा। तो जो अल्लाह के घर का निगहबान है उसको जब ज़र ख़रीद समझा जाएगा तो फिर भाई बहनों की आपस में लड़ाइयाँ होंगी, ज़ाहिर सी बात है, फिर अदम बर्दाश्त पे कत्ल भी होंगे। कितना मुश्किल है देही इलाके को कंट्रोल करना, शहरी इलाके को कंट्रोल करने से एक SHO को ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पेश आती है? दोनों जगह के अपने अपने मसाइल हैं। देहाती इलाके के अपने मसाइल हैं, शहरी इलाके के अपने मसाइल हैं। शहर में एरिया कम होता है, देहात में एरिया कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा होता है देहात में, और बाकी जो है वो इसलिए हमें कुछ रिस्पॉन्ड करने में कुछ बाद का टाइम लग जाता है। उसकी वजह से पब्लिक हमारी बहुत सी एविडेंसेस ज़ाया कर देती है, मुल्ज़मान को मौका मिल जाता है भागने का, फ़रार होने का। हमारे पहुंचने से पहले बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उल्ट पुलट हो जाती हैं, कुछ केसेस में जो है वो तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं, बड़े मतलब ना। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल टेक्निकल ज़राए भी बहुत ज़्यादा हैं। तो शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्रिमिनल से ज़्यादा वास्ता पड़ता होगा, स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा, डकैती ज़्यादा, और गांव देहात में ज़्यादातर लड़ाइयाँ और इस तरह के जो है वो ज़्यादा है। क्या कहेंगे देहाती इलाके के ख़ास तौर पे लोगों को रहने वाले लोगों को मैसेज क्या देंगे, क्या मैसेज देंगे कि आवाम में थोड़ा सा तहम्मुल आ जाए, आवाम का थोड़ा सा कानून और कानून नाफिज करने वाले, जैसे इस केस में जो मुद्दई हैं उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सब्र से काम लिया, उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, उनकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने कोई फायरिंग की हो, कहीं एम्बुश किया हो। इन्होंने बल्कि अपने भतीजों को जो यतीम हो गए थे, जो इनके सामने जवान हुए हैं, पाला है इन्होंने उनको भी ये कहा कि कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे बेटा ट्रस्ट रखो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो करने वाला है। और हमने देखा कि पुलिस ने जो है एक सेकंड के लिए भी गफलत नहीं बरती, उसको जो है वो गिरफ्त में ले लिया मुलजिम को। क्या मैसेज देंगे लोगों को ताकि वो अपने इलाके के SHO की बात सुने, उस पर अमल करें, एक दो लोगों की इस्लाह भी हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले तो किसी भी जुर्म की बर वक्त इतला पुलिस को दें। पुलिस के जगह जगह पे नंबर्स और सोर्सेज हैं कि नंबर लिया जा सकता है। उसके अलावा 155 का है और बहुत से सोर्सेज हैं। पुलिस की किसी भी वकूए की बर वक्त इतला दें और वकूए पर जो है ना पुलिस को पूरा तावन करें, और पुलिस के साथ अब जितना तावन करेंगे उतना आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत में हम उतना जो है बेहतरीन और अच्छा किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर एजाज़ हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे 16 साल से मफरूर एक इश्तिहारी मुलजिम को इन्होंने गिरफ़्तार किया जो 302 यानी कि कत्ल के मुकदमे में मफरूर था और पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत से इसको भूली नहीं, पुलिस याद रखा, और फिर जैसे ही वो शख्स वापस पाकिस्तान आया पुलिस ने उसे धर दबोचा। दूसरा SHO थाना बलूचनी का ये मैसेज था कि कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे भरोसा रखिए। किसी भी मुसीबत, मुश्किल या आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो पुलिस को ज़रूर इत्तला दीजिए। आप इत्तला देंगे तो पुलिस और कानून हरकत में आएगा, क्योंकि माँ भी तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। आप इत्तला नहीं देंगे तो किसी को ख्वाब नहीं आएगा कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आपके लिए है। ट्रस्ट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए और फिर कोऑपरेट कीजिए ताकि जो मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जा सके। नाज़रीन इकराम, अज़म बर्दाश्त वो धीमक जो हमें अंदर ही अंदर से खा रहा है। टीम मुजरिम कौन रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट करती है जिसमें एक मामूली रंजिश, एक मामूली तल्ख़ कलामी, कत्लो गारत गरी तक जो है वो जा पहुंचती है। हमारे रवैयों में ठहराव कब आएगा, हम कब बर्दाश्त से काम लेना सीखेंगे। रोज़ाना ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें नतीजा ख़ानदानी दुश्मनियों और नस्लों की तबाही तक जा पहुंचता है, लेकिन शायद हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। फैसलाबाद पुलिस की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है जहां खुर्डियांवाला सर्कल में थाना बलूचनी की हदूद में 2009 में एक मर्डर का PO यानी इश्तिहारी मुलजिम जो है वो 16 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। ये कत्ल एक मामूली तल्ख़ कलामी, मामूली रंजिश का शाखसाना था। खेतों में हल चलाते हुए एक किसान को जो है वो मामूली सी तल्ख़ कलामी की बिना पर कत्ल कर दिया गया। यही मामूली तल्ख़ कलामी शायद 4 से 5 मज़ीद लोगों की डेथ का, कत्ल का बायस भी बनी। कुछ लोग इश्तिहारी मुल्ज़िमान डिक्लेयर हो गए, एक सज़ाए मौत में काल कोठरी में है। 2 मुल्ज़िमान जो हैं इन्हीं 3-4 कत्लों में 25-25 साल अदालत से कैद पाने के बाद
जेल में हैं, आखिर हमारे रवैये कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगियों में। मैं इस वक्त DSP सर्कल खुरड़ियावाला नसरुल्लाह साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि 16 साल के बाद एक मुलजिम कैसे पुलिस को याद रह जाते हैं इतने पुराने केसेस, जिसको तो हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे, बल्कि मुर्दा तो कभी गड़ा होने ही नहीं दिया पुलिस ने। 16 साल के बाद एक नस्ल जवान हो जाती है और लोगों को भूल जाता है कि यहाँ कोई मुलजिम हुआ करता था, बैरून मुल्क फ़रार हो गया। कैसे पुलिस को पता चल जाता है कि ये बंदा है, ये मतलूब था हमें और उसको दबोच लिया। ये डियर एक्ट जो भी होता है संगीन वकूआ, उसमें हर मुलजम का एक हिस्ट्री शीट तैयार किया जाता है। जब PO होता है तो उसका हिस्ट्री शीट तैयार किया जाता है, उसके तमाम कोयफ अजीज़ कारब, उसका आना जाना, ट्रैवल करना बैरून मुल्क अंदरून मुल्क, अच्छे बुरे भले लोगों के साथ उसका तलक वास्ता, ये सब चीज़ें उसमें अंदराज होती हैं। उसके कोई टेलीफोनिकली या मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो रवाबत हैं उन पर वर्क किया जाता है। तो ये बोलने वाली इसमें कोई बात नहीं होती, वो ताज़ा ही होता है। एक शख्स है सर, वो अगर पुलिस को किसी भी केस में मतलूब है और ख़ास तौर पे जो फिर संगीन जराइम है जैसे कत्ल है, डकैती है, तो आपका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग पे लगा हुआ होता है, पुलिस की नज़र उस पर होती है, फिर चाहे वो छुपने की कोशिश करे, फ़रार होने की कोशिश करे, जैसे ही वो रेडार पे आएगा वो धर लिया जाएगा। ये वाला जो पहले मैंने बताया ना, ये इश्तिहारियों वाला और संगीन मुकदमा खुसूसन, ये बिल्कुल बुले शुले नहीं होते, उसी तरह ही होते हैं। मतलब इनका दायमी रिकॉर्ड होता है, इनका रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता, इनका चलता रहता है। और उसमें वर्किंग भी आप देखते हैं, वो बाज़ का होता है लोग ऐसे पसो पेश हो जाते हैं या बिल्कुल ही गुमसुम हो जाते हैं, आउट ऑफ सीन हो जाते हैं, कहीं कट ऑफ हो जाते हैं, दूर दराज एरिया में चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए। वो देर लगती है, लेकिन एक न एक दिन उन्होंने पकड़ी जाना होता है, क्योंकि उस पर वर्किंग जारी होती है। तो तमाम दीगर एजेंसी के साथ और वाबते में रहकर पुलिस उस पर मुश्किल वर्किंग कर रही होती है। जैसे ही फिर मौका मिलता है पुलिस अपना काम करते हुए उसको दबोच लेती है। सर इस केस में भी 16 साल के बाद मुलजिम अरेस्ट हुआ, इसके बाद होने वाले क्राइम्स में कुछ लोग पकड़े गए, कुछ अभी भी शायद पुलिस को दीगर केसेस में मतलूब होंगे। ये वाक़या बेसिकली एक अदम बर्दाश्त का था। एक मामूली एक किसान है, ट्रैक्टर से हल चला रहा है, वो पानी पीने के लिए उतरता है, मामूली झगड़ा होता है और वो जान से चला जाता है। ये हमारी ज़िंदगियों में चल क्या रहा है सर? हमारी सोसाइटी, शहरों में, देहात में, अब हर तरफ जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है लोगों में बर्दाश्त नहीं है। कुछ बहुत सारे वाक़यात टीम मुजरिम कौन ने रिपोर्ट किए कि एक गाहक दुकानदार के पास जाता है, वो सेब तुलवाने लगता है, वो मेजरमेंट ऊपर नीचे हुई, बंदा मर गया। अच्छा, एक दीवार बना रहा है शख्स, वो कह रहा है जी एक ईंट मेरी तरफ ज़्यादा आ गई है, लड़ाई हुई, बंदा मर गया। ये हो क्या रहा है? ऐसे केसेस जैसे जैसे वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगियों में ठहराव ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह क्या है? एक्चुअली इसका कोई अखलाकियात जो हैं, हमारे रवैये जो हैं, अखलाकियात ख़त्म होती जा रही हैं। नफ्सा नफ्सी का दौर है, पहले वाले एहसासात वो नहीं रहे। और मैंने देखा अक्सर हमारे सामने जब केस आते हैं, मुलज़म आते हैं, उनकी फैमिलीज़, मुलज़म ख़ुद भी इस चीज़ पे पशेमान होते हैं कि हमने जी बस वो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है, सारी उम्र हमारे लिए पछतावा है, ख़ुद भी पशेमान होते हैं। लेकिन वो बस हट दर्मी और तसलबाजी, रंजिश, कदूर। इसको सर हम झूठी अना कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग अपनी अना की तस्कीन के लिए इंसान जो है वो सम टाइम दरिंदगी पर उतर आता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल वाज़ेह इसको कह सकते हैं। बाद में पछताते रहते हैं लोग सारी उम्र की, जो वो थोड़ा सा टाइम हम जो है उसको बर्दाश्त कर लेते। अच्छा, ये बताइएगा सर, मैसेज क्या देंगे? खुड़ियावाला सर्कल है, इसमें ज़्यादातर रूरल एरियाज़ हैं। रूरल एरियाज़ में जो है वो फिर अदम बर्दाश्त से अगर एक केस होता है, फ़र्ज़ करें जैसे ये केस हुआ, तो फिर वो वहीं रुक नहीं जाता। शहरों में जो है अदम बर्दाश्त पे एक वाक़या पेश आता है, गाँव में अदम बर्दाश्त पे वाक़या सानहात में तब्दील हो जाता है, ख़ानदानी दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं। कैसे रोक सकते हैं? क्या मैसेज देंगे लोगों को कि अपनी ज़िंदगियों में किस तरह की तब्दीली लेके आएँ ताकि मुआशरा जो है वो अमन का गहवारा बन सके? इसमें बिल्कुल पुलिस में इसमें खातिर खा रोल प्ले करती है और करती रहती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी दुश्मनी है अक्सर पुलिस के इंटरवीन करने से उसमें मसाइल हल हो जाते हैं, दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो
अच्छे लोग हैं, पॉलिटिकल बेस्ड, और बाकी शुरफा हैं इलाके के, उनको भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये जैसे सर ये अमन और मसालहती कमेटियां बनी हुई होती हैं, जैसे गांव के एक पंचायत सिस्टम होता है, अगर ये लोग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें तो छोटे छोटे झगड़ों को जो है वो मेरे ख्याल में सानेहा बनने से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये तमाम की कोऑर्डिनेशन से छोटे मसाइल जो हैं वो एक बड़ा साना होने से जो है ना, उनसे बचा जा सकता है। नाज़रीन इकराम, डीएसपी खुर्डियावाला सर्कल नसरुल्लाह साहिब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पुलिस कभी भी भूलती नहीं है, जुर्म छुपता नहीं है, मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, जैसी भी राह फ़रार इख्तियार कर ले, कानून जब हरकत में आता है तो फिर 16 साल बाद भी जो मुल्ज़िमान हैं उनको धर लिया जाता है। यहाँ पे मुआशरती रवैयों की बात हुई कि लोग अपनी ज़िंदगियों में ठहराव पैदा करें, एक दूसरे के दुख सुख को समझें, एक दूसरे के दुख सुख में जैसे पहले शरीक हुआ करते थे अगर वो शरीक हों, एक दूसरे की इज़्ज़त को साझेदारी उसमें रखें, तो फिर ऐसे सानेहात से बचा जा सकता है। बकौल शायर, पावें ए मुरदार ने खांदे जाजा नवियां थावां दे, एक दे गम विच सारे रोंदे, डूंगे रिश्ते कावां दे। सो जानवरों से ही कुछ सबक ले लेना चाहिए कि अगर हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, मसजूद मलाइक हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात डिक्लेयर किया गया है, तो हमें उस ज़िल्लत की पस्ती में नहीं गिरना चाहिए जहाँ पे हैवानियत भी शर्मा जाए। नाजरीन, अदम बर्दाश्त पे, मामूली बातों पे तल्ख कलामी और फिर ये तल्ख कलामियाँ बढ़कर झगड़े और झगड़े कत्लो गारतगरी तक पहुँच जाते हैं। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे कमी है, क्या हम अपने बच्चों को तरबियत देने में कोताही के मुर्तकिब हो रहे हैं या ओवरऑल हमारी सोसाइटी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। यही गांव देहात में जब कोई कत्ल का वाक़या होता था तो कई कई दिन पूरा इलाका सोग में डूबा रहता था, लेकिन अब शायद मामूली बातों पर झगड़े और फिर बात खून खराबे तक पहुंचना एक रूटीन बनती जा रही है। टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है फैसलाबाद में थाना बलोचनी के इलाके में एक इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी की, जो 2009 में कत्ल की एक वारदात करके भागा और बैरून मुल्क फ़रार हो गया। 16 साल के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। यहाँ पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के क्राइम रिपोर्टर अली हैदर भुट्टा मौजूद हैं, जो क्राइम पे ग्रिप रखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइम स्टोरीज़ भी ब्रेक करते हैं। अली से बात करते हैं, जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ था, ये मुलजिम कहाँ फ़रार हो गया और कैसे पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। अली मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया। अली बताइएगा कि थाना बलोचनी के इलाके में ये जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ 16 साल के बाद, क्या वाक़या था ये, क्या इसके मुहर्रिकात क्या थे और फिर 16 साल के बाद कैसे पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया? अच्छा शुएब भाई, सबसे पहले तो ना जहाँ पे अगर बात करें पुलिस की, तो जहाँ वो अच्छा काम करेगी उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम था थाना बलोचनी पुलिस का। 16 साल बाद जो है इश्तिहारी मुलज़म जो है उसे गिरफ़्तार किया गया। 57 रेबे का मेरा ख्याल ये इलाका था जहाँ पर ये मर्डर हुआ है और मामूली तलख कलामी हुई है। मामूली तलख कलामी ऐसी हुई है कि वो ट्रैक्टर पर ज़िम्मेदारा कर रहा था शख्स, वो जैसे ही उतर कर आया है, ये आगे खेतों में बैठे हुए थे, घात लगाए और मामूली तलख कलामी हुई। इनकी अदम बर्दाश्त का ये आलम है, इन्होंने फायरिंग करके उस शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया। और इस कत्ल के बाद पे दर पे 3 से 4 मर्डर और हुए हैं इसी कत्ल की वजह से, और जिनके मुलजमान जो है उन्होंने पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन ये मुलजम जो है ये फ़रार था। इसको 2 से 4 रोज़ हुए हैं इनको अरेस्ट किए हुए थाना बलोचनी पुलिस की जानिब से, और इस मुलज़म को गिरफ़्तार करना पुलिस की बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि उन्होंने इश्तिहारी मुलज़म जो है उसे गिरफ़्तार कर लिया 16 साल बाद। 2009 में ये वक़ूआ जो है वो पेश हुआ था। 2009 में अली ये शख्स मर्डर करने के बाद ज़राए के मुताबिक ये बैरून मुल्क फ़रार हो गया था, ये दुबई चला गया था। अच्छा, यहाँ पे अब एक पब्लिक परसेप्शन तो ये है कि हमारी पुलिस जो है वो कोताही करती है, फ़ाइलें दब जाती हैं। जो प्लस पॉइंट है पुलिस का, जहाँ पे क्रेडिट हो वहाँ देना चाहिए कि पुलिस ने इस फाइल को मनो मिट्टी तले दबने नहीं दिया। पुलिस जागती रही है, पुलिस के रडार पे रहा, और जैसे ही 16 साल के बाद ये वतन वापस आता है पुलिस उसको धर दबोचती है। अच्छा, जो दूसरे 3 कत्ल थे वो इन्हीं की फैमिली के लोग थे, पेशी पर जा रहे थे। वही मुलजिमान, इसका भाई, चचाजाद भाई और इसका एक चचा, वो घात लगाए बैठे थे। 3 लोगों को उन्होंने, इसी फैमिली के 3 लोगों को कत्ल किया। उनमें से जो मुलजिमान हैं, एक जो है वो उसको सज़ाए मौत हो चुकी है, जेल में 2 25-25 साल कैद काट रहे हैं। अली, मेरा सवाल ये है, टीम मुजरिम कौन पूछती ये है, आप क्राइम रिपोर्टर हैं,
ये ज़रा सी बातों पे तल्ख कलामियाँ, ये पहले ऐसा नहीं था। हमारी सोसाइटी में बहुत तहम्मुल हुआ करता था, बहुत बर्दाश्त हुआ करती थी, लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हुआ करते। ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे एक घर में मैयत होती थी तो पूरा इलाका वहाँ पे इकट्ठा होता था। अब हमसाया हमसाये का गला काट रहा है, मेरी दीवार यहाँ नहीं वहाँ बनेगी, तुमने मेरा पानी ज़्यादा लगा लिया, बाप बेटे आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? शुएब भाई बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले जो माहौल था ना हमारे देहात का, वो ऐसे था कि अगर गांव में मर्डर तो दूर की बात, अगर वैसे किसी की डेथ हो जानी तो पूरे गांव में सोगवार, पूरा गांव सोगवार हो जाता था। टीवी नहीं चलना, कहना कि यार उनके सोग में बराबर के शरीक होना है। लेकिन अब आए रोज़ जो है आप देख रहे हैं कत्ल की वारदातें हो रही हैं। कहीं कचहरी के अंदर जो है वो शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं अदालत के अंदर जो है वो मुल्ज़मान आते हैं और जो पेशी पर आए शख्स होता है उसको कत्ल कर देते हैं। अगर बात करें अदम बर्दाश्त की, अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि आज 252 रेबे का आज का वाक़या है जो कि थाना रोशनवाला का इलाका है, जहाँ पर पानी के तनाज़े के ऊपर मामूली तलख कलामी हुई है। उसके ऊपर दूसरे रिश्तेदार ने ऊपर फायरिंग कर दी और वो शख्स उसको ज़ख्मी कर दिया, उसके हाथ पे फायर लगा, उसके बाजू पे फायर लगा है। ये आलम है अदम बर्दाश्त का। और पहले था कि अगर किसी ने कोई बात कर भी दी ना उसको इग्नोर करते थे, चले जाते थे, लेकिन अब इग्नोर करने वाला सवाल ही नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इसके ऊपर किया है वो दूसरे गैर मुल्क की जो मूवीज़ हैं उन्होंने किया है। असले का इस्तेमाल, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो असला चला रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले था हमारे बच्चे जो हैं वो गेम्स इस तरह की खेलते हैं जिनको शायद हमें उनको नहीं देनी चाहिए। वो मार धाड़ पे मबनी गेम्स हैं उनकी। बच्चे जो हैं वो हमारे जहनी मरीज़ जैसे ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि जैसे कुछ दिन पहले टीम मुजरिम कौन ने भी एक वाक़या रिपोर्ट किया कि गाहक आया होटल पे और होटल पे उसकी मामूली तलख कलामी होती है और तलख कलामी जो है वो बाकायदा एक फिर गैंग जत्था बन के जो है वापस हमलावर होते हैं, गोली चलती है। एक दुकानदार जो है वो अपना सब्ज़ी या कोई सेब लेने के लिए, सेब का शायद मसला था, सेब लेने के लिए आया, तुमने मुझे एक सेब कम दिया, ज़्यादा दिया, वहाँ पे जो है ना वो लड़ाई होती है, गोली चल जाती है। ये हम अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं? हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही? बिल्कुल ऐसा ही बात है। ये हम जो हम करेंगे ना वही हमारे बच्चे भी हमें देख कर करेंगे। ये तो 2 वाक़े जो आपने बताएं, ये है। एक तीसरा वाक़या थाना जंग बाज़ार के इलाका में रिसेंटली पेश आया है, 2 दिन हो गए हैं। वहाँ पर दुकानदार और गाहक का छोटा सा तनाज़ा हुआ तो दुकानदार के ऊपर जो है वो हमला कर दिया छुरियों के साथ। पहले तो असले की बात है तो असले की बात तो ये है कि दूर से फायर मार दिया तो उसको ज़ख्मी कर दिया, लेकिन छुरियों के साथ दुकानदार को सर के ऊपर वार किया है। वो हॉस्पिटल में मेडिकल लेके उसने FIR करवाई है। ये मामला चल रहे हैं। अगर यही काम हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी वो यही देखेंगे, हमसे यही सीखेंगे। वो यहाँ नहीं तो स्कूल जाके ऐसे लड़ाई करेंगे। स्कूल में नहीं करेंगे तो वो गली मोहल्ले में तो लाजमी करेंगे कि अगर मेरे वालिदैन जो ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मार काट रहे हैं, दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमसे यही असर लेंगे और वो आने वाले दिनों में अच्छे शायरी नहीं बनेंगे। आने वाले दिनों में वो या तो अक़दाम कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस होंगे या कत्ल के वाक़यात में। इसका हल क्या है? हम क्या ग्रास रूट लेवल जिसे कहते हैं स्कूल लेवल पे बच्चों को तरबियत दें? हम अपनी ज़िंदगियों में जो है वो ठहराव कैसे ला सकते हैं? क्या ये महज हमारा सोशल इशू है या वाकई में हम अल्लाह ताला से और दीन से भी दूर होते जा रहे हैं? बेशक सबसे बड़ी बात जो आपने की बहुत अच्छी है, हम दीन से दूर हो गए हैं। अगर हम दीन इस्लाम को पढ़ें तो हमें बहुत से ऐसे मामला हैं जिन्हें हमें कहा गया है कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करो, अफ़ू दर गुज़र का मुज़ाहरा करो, लेकिन हमें वो कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। हम छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सिखाएं ताकि वो अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ अच्छे शहरी भी बन सकें। बाद में जब स्कूल से वो पास आउट हो जाएं तो उनका जो उन्होंने लर्निंग की है स्कूल से वो उनके डिसिप्लिन से, उनके रहन सहन से हर चीज़ नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि आपने बताया कि लड़ाई झगड़े का मामला जो यहाँ पर पेश आया था सरगोदा रोड के इलाका में, होटल के ऊपर मामूली तलख कलामी रोटी के लेन देन के ऊपर हुई। तो पहले उसने कहा कि पहले मैं लूँगा क्योंकि मैं किसी सरकारी मुलाजम का भाई हूँ, इसीलिए मैं ये काम सबसे पहले लेके जाऊंगा। वो उसने कहा भाई 2 मिनट वेट कर लें, मैं बाकी गाहकों को भेज कर आपको दे दूंगा। लेकिन इतनी बात के ऊपर लड़ाई हुई है, वो चला गया है। उसके बाद एक जत्था आता है, वो आकर दुकानदारों के ऊपर मुबैना तशद्दुद करता है। उसके बाद वहाँ पे फायरिंग होती है, फायरिंग से खुद ही ज़ख्मी हो जाता है। मुकदमा भी दर्ज किया गया, सरकारी मुलाजम जो है वो भी उसके अंदर मुलव्वस था। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर सरकारी मुलाजम ने भी अपने भाइयों को ये नहीं समझाना कि भाई हम मुलाजम हैं, हमें ये जो है वो हमें ये नहीं बताया गया कि आप गली मोहल्लों में जाके बदमाशी करें। हमें ये सिखाया गया है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसे मना कैसे करना है।
ठीक है सब। और दूसरी बात भी वही है जो आपने कही थी कि हमें इस्लाम को पढ़ना चाहिए, इस्लाम के साथ जो है वो अपने खुद भी अटैच होना चाहिए, अपने बच्चों को भी अटैच करना चाहिए। तो इसी के साथ नाज़रीन किराम, अली हैदर भुट्टा हमारे साथ मौजूद थे, क्राइम रिपोर्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के। अली आपका बहुत शुक्रिया। बता रहे थे कि कैसे 16 साल के बाद जो है वो एक इश्तिहारी मुलजिम जो पुलिस की पहुंच से दूर था, पुलिस की हिरासत में नहीं रहा था, लेकिन पुलिस के रडार पे था, और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आता है पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। नाज़रीन किराम, ये अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी का वो धीमक है जो हमें अंदर ही अंदर से चाट रहा है। भला ये कैसी अजब अकीदत सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिर्फ नफ़रत सिखा रहे हैं कि जुर्म करना है सहल कितना, और अच्छे कामों पे बस नदामत सिखा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, उन्हें तहम्मुल बुर्दबारी नहीं सिखाएंगे, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे कि मामूली बातों पे कत्लो गारतगरी रूटीन बनती जाएगी। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।